Hello friends, I am Aditya Mittal. I will be your faculty for CFA Level 1. Just to give you a brief introduction about myself, I've cleared all three levels of CFA examination conducted by the CFA Institute, US. I'm also a chartered accountant. I got All India Rank 3 in CA Finals and 19 in IPCC. I did my graduation from Shriram College of Commerce, and currently I am associated with one of the top FMCG companies in India. So yeah, that's it about me. Let's get started. So, what are we discussing today? In today's class, we will be discussing about the topic equity, which is a part of CFA Level 1 curriculum. So, if you have 10 subjects, right, one of them is equity. So, equity में the key thing is that it has a lot of weightage. It's an important concept. There is no denial to that. आप लोगों को अच्छे से ये सब्जेक्ट करना है. इसका वेटेज एज पर CFA गाइडलाइंस अराउंड 10 to 12% होगा. थोड़ा लेंदी टॉपिक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होगा, so it will be an interesting concept and a topic. Then इसमें basically we will understand the basics of equity market. See, इस टॉपिक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि दिस इज समथिंग विच यू डील विद इन योर एवरीडे लाइफ. तो आप लोगों को शेयर मार्केट, उसमें शेयर्स ट्रेड होना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग एक्चुअल लाइफ में देखते हो, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रही है ऑलरेडी, एंड देन इफ़ यू लर्न अबाउट इट you will know much more things like how to value a price of a share, then what are the, so we will just note down some of the key topics which we'll be going through in this subject. I was talking about basics of equity market. Then we have market structuring. Market structuring will include that how the markets are structured and how the orders are executed. So that will include order execution, right? Order execution में we will study stop loss, in market, out of market, all those kind of orders. Then we have security market indices. So security market indices will be like for India we have Sensex, Nifty. So these are indices which are there and how their weightages are defined. So we hear about Nifty 50, right? So there are 50 companies, top companies which are included in that Sensex. How their weightages are defined. उसमें किस तरह से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है और किस कंपनी का कितना वेटेज रहेगा. कभी आपने सुना भी होगा कि कोई कंपनी उस टॉप 50 से बाहर हो गई, एक नई कंपनी ने एंटर कर लिया, तो कैसे होता है वो सब चीज़ें. सो दैट वी विल अंडरस्टैंड. देन concept of efficiency in equity market. When we say that a market is efficient, when its information is available amongst the investors, they are able to execute the transactions at a reasonable transaction cost. So those will be the some of the features of an efficient market, right? Then we will understand about industry and company analysis. This will be one of the topics. Like I was discussing valuation.
different methodologies of valuing an equity share. उसमें आप समझेंगे कि कैसे हम फाइनली वैल्यू कर सकते हैं किसी भी इक्विटी शेयर को. व्हाट इज़ एन अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड शेयर. आप एक्चुअल मार्केट में फिर देख सकते हैं कि ओके एज पर यू व्हाट शुड बी अ वैल्यू ऑफ अ शेयर लाइक ITC और any Indian company, then or any foreign company for that matter. So you can look at their results, their ratios, derive the value, see whether it is overvalued, undervalued, whether you should take a long position, short position on that particular share, right? Then we will understand equity markets as a whole. Basically, what will happen is you will get an overall understanding of how the equity market is working, right? So, उसमें how the market structuring is there, like we discussed. Then what are the different types of indices? What is an efficient market? Industry and company analysis, valuation. So the key topics that we will cover in the entire subject. Obviously, for today we can start with one of the topics, right? Before starting, there is one thing that I'd like to mention. In this topic, we will also see the actual prices on stock exchange. So that will be one of the things that we will be going through. मार्केट में कैसे आपको प्राइस दिखता है, आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं. तो वी विल ट्राई कि हम लोग एक्चुअल लाइव भी देख सकें. इस टॉपिक में एक एडवाइस, सी इसमें कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स होंगे एंड कुछ प्रैक्टिकल, लाइक वैल्यूएशन है वो प्रैक्टिकल है. सो देयर विल बी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हाउ टू वैल्यू एंड देन देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन दैट. तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा, बट माय सजेशन इज दैट यू स्टडी दिस टॉपिक इन डेप्थ. This will be very helpful in your way, in your coming way for your finance career, right? So equity, for that matter, fixed income or any topic of CFA is important. But this is one thing which actually you see when you are working in any corporate, you earn, you invest. So when you invest, you will look for options. This is one of the options which is very, very common. And you keep on hearing from so many people that they are buying shares, selling shares, doing trading, doing investments. So my advice is that focus on this topic. It's very scoring. If you only if you understand the concepts very well, right? And I'll make sure that you are able to understand and grasp all the topics, and I think it will help you in your career as well. तो आगे बढ़ते हैं. विल स्टार्ट वन ऑफ द टॉपिक्स विच विल बी फाइनेंशियल सिस्टम. सो फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम. थोड़ा थ्योरी है बट ठीक है, चलेगा. अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. तो फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन दैट आर फाइनेंशियल सिस्टम सर्व्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, राइट, फॉर द पीपल. तो इसमें हमारा सबसे पहला फंक्शन है दैट अ फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स पीपल टू सेव. अब इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, किस लिए सेव करती हैं? इंडिविजुअल सेव करेंगे फॉर फ्यूचर एक्सपेंस,
रिटायरमेंट, कंपनीज सेव करेंगी टू फंड देयर प्रोजेक्ट्स, जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए. There are different ways of saving, like we were discussing. So they can buy stocks, they can buy real assets, properties, real estate. एक फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है कंट्री को, पीपल को टू सेव. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बोरोइंग. Again, individuals borrow, companies borrow. Individuals borrow maybe to fund education of their children, to buy a car, to buy a house. Companies borrow to maybe invest, or it can be also for their regular operations. तो बोरोइंग, एक सिस्टम में बोरोइंग हो रही है, नहीं हो पा रही है, सेविंग हो रही है, नहीं हो रही है, वो सब कुछ डिफाइन करेगा एक फाइनेंशियल सिस्टम. बट ये फंक्शंस कब वर्क करेंगे उसकी भी एक क्राइटेरिया है. ये दीज फंक्शंस विच अ फाइनेंशियल सिस्टम इज एक्चुअली सर्विंग, दीज विल ओनली हैपन अगर फाइनेंशियल सिस्टम में हमारी जो मार्केट्स हैं, those markets are liquid. See, अगर liquid ही नहीं है market, तो फिर तो people will only wait, right? They can't decide and go and do investment or borrow funds or do anything. तो markets का liquid होना ज़रूरी है, transaction cost low होना ज़रूरी है. Right? Information should be available. अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या मार्केट्स हैं, क्या करना है, कौन से शेयर्स अवेलेबल हैं, किसी भी चीज से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अमंग द पीपल सो दैट दे कैन डिसाइड, राइट. एंड इसके सबके ऊपर एक रेगुलेशन जो इंश्योर करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, दे आर गेटिंग फुलफिल्ड, they are getting settled, they are getting cleared, there is no counterparty risk or low counterparty risk. So अगर ये सब कुछ है, then we can say a financial system is there, it is working, and it is working to serve what all functions? To allow people to save, to allow people to borrow, to allow companies to issue share capital, वो भी एक फंक्शन है. So why do companies issue share capital? Right? To raise funds, to invest, or to maybe there's an upcoming project which is coming, a large project, right? Or they're getting listed through IPO, they're raising funds. So issuing share capital is an ongoing process. It is continuing since long and it will continue in future. So ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है जिसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. किस लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें? एक हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकर, सुना होगा आप लोगों ने. ये इशू में हेल्प करता है. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प्स इन द इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल टू द प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स. जब भी अगर हम बात करें किसी आईपीओ की या एक कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वॉल्व होगा जो इस पूरे इशू को मैनेज करेगा. देन देयर विल बी एक एनालिस्ट जो वैल्यू करेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर कि कितने शेयर, क्या प्राइस होगा उस शेयर का. एंड देन देयर विल बी सम रेगुलेटर्स और अकाउंटेंट्स
Basically, these are the people who will encourage the supply of information. हम लोगों ने बात करी थी कि एक फाइनेंशियल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड बाय रेगुलेटर्स, अकाउंटेंट्स हु आर responsible for the spread dissemination of information. So these are important people in any process which involves issuance of share capital. Then next function will be to manage risk. Manage risk. How do any company or anybody, how does he or she manage risk? So there are derivatives contracts, right? Which is one way. Again, so if there is a company which is incorporated in, suppose, US, right, and it has to receive a payment or make a payment in another currency in a period of time, in a certain period of time, maybe 3 months, तो उसको रिस्क है कि अब जिस भी करेंसी में उसको पेमेंट मिलनी है या पेमेंट करनी है, अगर एक्सचेंज रेट तो फ्लक्चुएट होगा, अब चेंज हो गया तो उसको हो सकता है जितना उसको आज की रेट में पेमेंट करनी थी वो चेंज होके उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. दैट इज़ अ रिस्क. अब वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए, हेज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट where they are, suppose they are to receive a payment, they can enter into a contract to sell that currency which they are getting in a foreign currency. They can enter into a contract to sell that at a fixed exchange rate so that any change in exchange rate will not impact them, right? तो वो हो गया कि रिस्क मैनेज करने का. Then next is to exchange assets. एक्सचेंज एसेट्स सिंपली मीन्स कि सपोज एक कंपनी है इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उसके ज़्यादातर खर्चे इंडिया में ही होंगे, INR में, रुपीज़ में होंगे. अब उसके अगर ऑपरेशंस बाहर भी हैं तो वो बाहर से इनकम जनरेट हो रही है, सपोज US में ऑपरेशन है, US में इनकम हो रही है डॉलर्स में, तो अ फाइनेंशियल सिस्टम शुड बी एबल टू हेल्प दैट कंपनी टू एक्सचेंज US डॉलर्स टू INR सो दैट वो अपने इंडिया में जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर सके, वो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि उसके पास सिर्फ इनकम US डॉलर में हो रही है, उसके पास रुपीज़ ही नहीं है खर्चा करने के लिए. तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम. एंड देन नेक्स्ट फीचर विल बी टू यूटिलाइज इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है बट उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा ना. तो बेसिकली इंडिविजुअल्स ऑफ एनीबडी फॉर दैट मैटर शुड बी एबल टू अर्न एन एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो अगर अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंडर वैल्यूड शेयर. अब हाउ विल यू नो कि एक शेयर अंडर वैल्यूड है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच शुड बी अवेलेबल. एक कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी अदर रेशियोज और एनी अदर फाइनेंशियल्स फॉर दैट मैटर, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं. हिस्टोरिकल है, आप एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल्स बना सकते हैं. देन यू कैन actually arrive at your conclusion whether that particular share is undervalued or overvalued. तो वो information available होना, उसको utilize करना so that you are able to earn that extra rate of return because you know that this share is undervalued, you buy, and since it was undervalued, price will go up and you sell, so you earn. And that is the function which a financial system should be able to serve. तो बेसिकली ये जो हमने फंक्शंस अभी देखे, these are some of the functions of a financial system. Then coming to the next set of functions, which is determination of interest rate.
इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। सी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम पे कब होगा? या तो इंटरेस्ट रेट अगर सपोज बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट, इस केस में क्या होगा, जो बोरोअर है वो तो बहुत इंटरेस्टेड होगा बोरो करने के लिए, बट जो सप्लायर है, जो लेंडर है, द सप्लायर ऑफ फंड्स, वो तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसको तो कोई इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं मिल रहा है, ही विल बी इंटरेस्टेड इन कंजम्पशन। तो मार्केट में कंजम्पशन ज्यादा होगी तो देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ फंड्स बट देयर इज अ लो सप्लाई ऑफ फंड्स, बिकॉज द पीपल हु आर supplying funds are interested in higher consumption since the return they are getting is not very high. इसका उल्टा कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, जिसमें बोरोअर्स, तो इस केस में बेसिकली डिमांड इज हाई एंड सप्लाई लो। इसमें बोरोअर्स की डिमांड कम होगी बिकॉज दे हैव टू पे हायर, बट सप्लाई बहुत ज्यादा होगी बिकॉज दे आर गेटिंग अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। तो अगेन मैच नहीं होगा आपका डिमांड सप्लाई। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वेयर amount of borrowing equal to amount of savings और supply of savings। जब ये होगा तभी आपका एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये सब आप एक्चुअल मार्केट में देखते हैं, बट हम कभी सोचते नहीं है कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 7% है, 8% है, 2% इंटरेस्ट रेट मार्केट में कैसे डिफाइन हुआ? वो डिफाइन हुआ बिकॉज उस रेट पे ट्रांजैक्शंस हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि एक इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट किया है उस पर, बिकॉज उस पर फिर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी। बोरोअर्स को या तो प्रॉब्लम होगी, या सेलर सप्लायर को या लेंडर को इशू होगा। तो एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होना मार्केट में इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इन एनी कंट्री। देन नेक्स्ट विल बी allocation of capital. So what is the scenario allocation of capital? कौन से सिनेरियो में कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट होगी? कैपिटल एलोकेट तभी एफिशिएंटली होगी व्हेन इन्वेस्टर्स आर अवेयर। दिस इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर इन्वेस्टर्स को पता है कितना रिस्क इन्वॉल्व है उनके इन्वेस्टमेंट में और उसके बदले उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, देन ओनली दे विल बी एक्चुअली एबल टू डिसाइड कि उनको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। अगर वो रिस्क एवर्स हैं तो वो उस हिसाब से पैसा डालेंगे सपोज बॉन्ड्स में जहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उन लोगों को वो दे आर रिस्क टेकर्स तो वो इक्विटी में डालेंगे, एंड दैट टू जो स्मॉल कंपनीज हैं, जो नई कंपनीज बनी है उनमें डालेंगे। तो बेसिकली दे शुड बी अवेयर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिटर्न है, देन ओनली capital will be efficiently allocated. अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एसेट्स की। टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वो बाद में करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि
क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरीके के एसेट्स अवेलेबल हैं। एक हो गया फाइनेंशियल एसेट्स और एक हो गया रियल एसेट्स। एग्जांपल्स देखते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में आपके आ गए सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आ गया, बॉन्ड्स, इक्विटी, राइट। फिर आ गया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हो गया सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें आप ऑन द स्पॉट मार्केट, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया। देन डेरिवेटिव्स में आपके मल्टीपल हैं। अगर आप डेरिवेटिव का लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा फॉरवर्ड्स है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस, स्वैप्स। अब ये जो डेरिवेटिव्स की हमने बात करी, ये हैं हमारे बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें होते हैं कुछ बेस्ड ऑन फिजिकल एसेट्स विच आर फिजिकल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये हो गया हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। एक है फिजिकल डेरिवेटिव्स। फिजिकल डेरिवेटिव्स हो गए फिजिकल कमोडिटीज के बेसिस पे, वीट, ऑयल। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन कमोडिटीज पे हैं, दोज आर एक्चुअल फिजिकल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दीज आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फिर फाइनेंशियल एसेट्स में और क्या है, फिर है हमारी करेंसी। तो फाइनेंशियल एसेट्स में हमारा हो गया सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी। फिर हमने बात करी थी रियल एसेट्स की। रियल एसेट्स में क्या आएगा, एक हो गया रियल एस्टेट, राइट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज कहते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, हाउसेस, सो ऑफिसेस, एनी रियल एस्टेट। तो ये रियल एसेट है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिसमें आपको फिजिकली नहीं दिख रहा है। वो चाहे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल डेरिवेटिव जो हमने पढ़े थे वो फिजिकल कमोडिटी के ऊपर डेरिवेटिव था, बट वो एक्चुअली में फिजिकल रियल एसेट नहीं है। बट रियल एसेट्स में रियल एस्टेट भी है, कमोडिटीज भी है। जो एक्चुअल कमोडिटी में ट्रेडिंग करेगा, लाइक देयर इज सपोज अ फार्मर, वो ग्रो कर रहा है, राइट। अब वो एक्चुअल फिजिकल एसेट है उसके पास, फॉर विच ही विल बी एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। वो उसको सेल करेगा मार्केट में एंड ही विल गेट अ रिटर्न। तो दोज आर रियल एसेट्स। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि हमारे क्या टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, और उससे पहले हमारा मेन चीज़ है कि एक फाइनेंशियल सिस्टम आपके क्या क्या पर्पस सर्व करता है। वो अलाउ करता है सेविंग, बोरोइंग, इशूइंग कैपिटल, राइट। वो सब फंक्शंस एक फाइनेंशियल सिस्टम सर्व कर रहा है। उसके लिए उसको क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, मार्केट्स लिक्विड होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, रेगुलेटर्स होने चाहिए, अकाउंटेंट्स होने चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। सो एक फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है वो आज हमने सीखा। बाकी इसमें बहुत कुछ है, लाइक मैंने बताया इक्विटी बड़ा टॉपिक है, तो वी विल डिस्कस मोर topics and more discussions will happen, and see you in the next class, right? Thank you so much.